Hello all my viewers, good morning to everyone. This is Neetu Ghai from Defense Services Academy and once again I am back with the vocab section. So yesterday I promised you that I will be doing vocabulary every alternate days. So you will be getting my videos on vocabulary every alternate days so that you can update your vocabulary. Now vocabulary mein we have done 10 words with the synonyms and antonyms and with the sentences based on that in my earlier video. And the words were from the letter A. So today also I will continue with the A letter synonyms and I hope आप लोगों को सारे words समझ में आ रहे हैं. Still, if you have any of the doubt or query, you can connect to me on my WhatsApp or you can comment me on my video. So just continue with the A letter synonyms and antonyms in today's video. So let's begin. So students, I am beginning with the part 2 of A letter synonyms in which we will do some more words for the synonyms. So let's begin. And the first word for today in the vocab section is abhor. What do you mean by abhorrence or abhor? Abhor means hatred. किसी को नापसंद करना, किसी को अच्छे चॉइस से नहीं करना, किसी से नफरत करना, better way. तो abhor means to hate someone or to dislike someone. That means to feel hatred or dislike. किसी को नापसंद करना, किसी से नफरत करना. ना उसका synonyms है detest. ना detest आप पसंद नहीं करते उसको, आप बिल्कुल आप उसको झेल ही नहीं सकते, आप उसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकते. Again loath, that means you dislike that person in a strong way. Okay, now अगर है abhor hatred तो इसका opposite क्या होगा? Like. One more new word, admire. Admire करना, आप किसी को पसंद करते हो, आप उसको पसंद करते हो, आप admire करते हो. Admiration पसंद, आप तारीफ कर रहे हो. Okay, तो admire करना, तारीफ करना, पसंद करना. Clear? Now, the world would be like heaven if all the people abhor none. वेरी गुड, द गुड सेंटेंस. मॉरली ये सेंटेंस बहुत अच्छी है कि ये दुनिया एक स्वर्ग बन जाएगी अगर यहाँ कोई भी किसी से नफरत नहीं करेगा. दैट मीन्स इफ एवरीवन will love others, this place would be a better place to live. This place will become a heaven. Okay, so abhor means to hatred, and if no one would hate or would abhor anyone, the place would become heaven. Done with this, so you must not abhor anyone. No matter he is your enemy even, still don't abhor him. उससे नफरत मत करो. Okay, now the next. And the next word for today is abide. Abide, अब ये तो हमने सुना है, हमने अपनी डायरी में प्रेयर के टाइम सुना है, ठीक है. Abide the rules. आपने रूल बुक में जब आपको डायरी, स्कूल डायरी मिलती थी, वहाँ पर आपको लिखा रहता था, वहाँ पे प्लेज में लिखा रहता था. प्लेज में पढ़ा है अबाइड द रूल्स. अबाइड करना, टू फॉलो, दैट मीन्स मानना, रूल्स फॉलो करना, रूल्स को मानना. सी, टू एक्सेप्ट समथिंग इन अकॉर्डेंस विद, दैट मीन्स अकॉर्डिंगली उसको फॉलो करना. दैट मीन्स यू आर फॉलोइंग दैट एज पर द अकॉर्डेंस. जैसे अकॉर्डिंगली आपको करना है आप वैसे ही कर रहे हैं. ना ओबे करना, अगेन अगर आप रूल्स फॉलो कर रहे हैं, अबाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर ओबेइंग द रूल्स, यू आर फॉलोइंग द restrictions, you are following the rules. See, अब उसका ऑपोजिट, अगर आप रूल्स नहीं मान रहे तो आप रिजेक्ट कर रहे हैं कि नहीं हमें नहीं मानना, आप कैंसिल कर रहे हैं. वन मोर न्यू वर्ड फॉर द एंटोनिम टू फॉलो इज फ्लाउट. फ्लाउट करना, डिसओबे करना, दैट मीन्स मानना नहीं है, डिसओबे करना. ओके, तो अबाइड मीन्स टू फॉलो and flout means to disobey. Clear? Now citizens, यहाँ पे citizens have to abide by the rules. Citizens को या हर किसी को students also, everyone, जो भी institution में आप रह रहे हैं, हमें उनके rules follow करने पड़ते हैं. You always abide by the rules of your home. आपके घर में जो रूल्स हैं आप उनको फॉलो करते हैं. You abide by the rules of the school. You abide by the rules of the society. कि जो सोसाइटी के रूल्स हैं आपको वो फॉलो करने हैं. तो citizens must have to abide by the rules of the nation. Done. Now come to the next.
एंड द नेक्स्ट वर्ड इज एब्निगेट. अगेन एब्निगेट करना, छोड़ देना. अभी हमने बहुत सारे वर्ड किए हैं कल के वीडियो में. छोड़ देना, हमने अबैंडन किया है, हमने एब्डिकेट किया है, दैट मीन्स टू गिव अप. क्लियर. सस्पेंशन, टेम्परेली छोड़ देना. क्लियर. तो एब्निगेट अगेन टू गिव अप. रिनाउंसिएशन, हमने अबैंडन में भी रिनाउंसिएशन किया था, एब्डिगेट में भी रेलिंक्विश एंड रिनाउंसिएशन किया था. एब्डिगेट के सिनोनिम्स में हमने ये वर्ड किए थे. सेम एब्निगेट और एब्डिगेट दोनों मिलते जुलते हैं. क्लियर. नाउ अब टू गिव अप, छोड़ देना, मना कर देना. टू लीव, सी डिस्कार्ड, रिजेक्ट मीन्स त्याग देना, छोड़ देना. अब अगर ये त्याग देना है तो इसके एंटोनिम होंगे टू एक्सेप्ट, टू टेक, ले लेना. जो भी प्रपोजल है अगर आप उसको एब्निगेट कर रहे हैं, आप उसको छोड़ रहे हैं, उसको ऑपोजिट आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं. क्लियर. नाउ सी एब्निगेटिंग सुपरस्टिशंस. अंडरस्टैंड द सेंटेंस वेरी प्रॉपर्ली. नाउ एब्निगेटिंग सुपरस्टिशंस. सुपरस्टिशंस मतलब अंधविश्वास. अब अंधविश्वास को छोड़ देना. एब्निगेटिंग मीन्स टू लीव, छोड़ देना. क्लियर. एब्निगेटिंग सुपरस्टिशंस इज एडवांटेजियस. मतलब आप अंधविश्वासों को छोड़ रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, बहुत हेल्पफुल है. तो सुपरस्टिशंस में कभी भी बिलीव नहीं करना चाहिए, उनको त्याग देना चाहिए. डन. चेक आउट द नेक्स्ट वर्ड. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज अबाउंड. अब हमने अबाउंड, आपने अभी तक ज्योग्राफी में पढ़ा होगा. ज्योग्राफी में आपने वर्ड पढ़ा है अबंडेंट. नाउ अबंडेंट मीन्स प्लेंटी ऑफ. प्लेंटी ऑफ मीन्स इन लार्ज अमाउंट ऑफ, बहुत सारा, इन लार्ज क्वांटिटी और टू अ लार्ज एक्सटेंट. इन सब का मतलब होता है बहुत सारा. उसी से ही बेस बना है अबाउंड. अबाउंड मीन्स इन अ लार्ज क्वांटिटी और टू अ लार्ज एक्सटेंट. सी टू एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर्स और अमाउंट्स, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रहना, इसको हम बोलते हैं अबाउंड. सिनोनिम्स इसके अबंडेंट हो सकते हैं, प्लेंटी हो सकते हैं, सफिक्स हो सकते हैं. अब सफिक्स वर्ड कहाँ से आया बच्चा? सफिक्स वर्ड आया सफिशिएंट से. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सफिशिएंट? सफिशिएंट मतलब काफ़ी होना, इनफ होना है, हमारे पास जितनी हमको ज़रूरत है हमारे पास उतना है, सफिशिएंट. क्लियर. अब इसके एंटोनिम्स, अब अगर प्लेंटी मतलब बहुत ज़्यादा, अबंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? स्कैर्स. स्कैर्स मतलब कमी. तो स्कैर्सिटी ऑफ विटामिन्स, सॉरी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स इन द बॉडी, दैट मीन्स कमी होना. स्कैर्सिटी ऑफ मिनरल्स इन अ एरिया, तो अगर स्कैर्सिटी होना, कमी होना, तो स्कैर्स. स्कैंटी, स्कैंटी रेनफॉल, दैट मीन्स कम रेनफॉल. ओके. सी कीवीज अबाउंड इन न्यूजीलैंड. कीवी खाई है आपने कभी? द ग्रीन वन, द टेस्टी वन. तो कहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है वो? न्यूजीलैंड में. वो न्यूजीलैंड का ही फ्रूट है, इसीलिए वो वहीं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाई जाएगी, इसलिए हमने लिखा है कीवीज अबाउंड इन न्यूजीलैंड. कीवीज न्यूजीलैंड में ही बहुत ज़्यादा पाई जाती है. डन. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट वर्ड. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज एब्रेसिव. एब्रेसिव होना, ध्यान ना देना, बिल्कुल चिंता मत दिखाना, ध्यान ना देना. सी शोइंग लिटिल कंसर्न और फीलिंग ऑफ अदर्स. किसी दूसरे पे ध्यान न देना या उसके बारे में बिल्कुल अटेंशन ही नहीं देना, उसके बारे में चिंता ही नहीं करना. ओके. अब आप रूड हो, अनोइंग हो, अनफ्रेंडली हो, आपसे कोई बात कर रहा है और आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे. आपको कुछ बता रहा है कोई पर्सन और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे, तो ये बिहेवियर कैसा है? ये बिहेवियर रूड बिहेवियर है, अनोइंग बिहेवियर है, मतलब गलत बिहेवियर है. दैट मीन्स कोई आपसे बात कर रहा है और आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तो ये तो गलत बिहेवियर है. तो दैट इज एब्रेसिव. एब्रेसिव मीन्स टू नॉट टू गिव अटेंशन ऑन अदर्स, जस्ट शोइंग अनवांटेड थिंग, कि आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो. दैट इज एब्रेसिव. नाउ एंटोनिम्स है प्लीजेंट. प्लीजेंट मीन्स अच्छा, खुश कर देने वाला. और एक और एंटोनिम है फ्रेंडली. तो व्हेनेवर यू आर शोइंग, व्हेनेवर यू आर गिविंग अटेंशन या व्हेनेवर यू आर शोइंग कंसर्न
to your friend, so you are friendly. And whenever you are not showing any concern मतलब चिंता, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, when you are not giving any attention to your friend, when you are not showing any concern to your friend, when you are not giving attention or any notice to your friend, you are behaving unfriendly. So that is abrasive. Okay, got the difference between the two? Now see the sentence. Abrasive behavior of employees. अब एम्प्लॉइज का कैसा बिहेवियर? ध्यान ना देने का. एम्प्लॉइज का रूड बिहेवियर, एम्प्लॉइज का काम पर ध्यान ना देने का बिहेवियर. एम्प्लॉइज हैं तो किस पे ध्यान नहीं दे रहे? काम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने काम पे अटेंशन नहीं दे रहे. तो ये एब्रेसिव बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉइज में बी हार्मफुल टू अ फर्म. तो वो उस फर्म के लिए नुकसानदायक हो सकता है. एंड इट इज़ अ करेक्ट थिंग कि अगर किसी भी फर्म, किसी भी कंपनी, किसी भी बिजनेस के एम्प्लॉयज़ अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहे, अपने काम पर अटेंशन नहीं दे रहे, तो वो उस बिजनेस के लिए नुकसानदायक हो सकता है. तो आई होप 5 words आर क्लियर टू यू. नेक्स्ट वी विल मूव टू द 6th word. Now the next word is abrogate. अब this word came in last year examination papers. Abrogate means किसी भी प्रथा को, किसी भी कानून को, किसी भी प्रथा को, किसी भी कानून को खत्म करना, किसी भी एग्रीमेंट को खत्म करना. See, marriage is also a social agreement of 2 people living together. तो अगर मैरिज खत्म हो रही है तो डिवोर्स. ऐसे ही किसी भी प्रथा को, किसी भी एग्रीमेंट को, किसी भी कानून को खत्म करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्रोगेट. क्लियर? इसको सिनोनिम्स अबैंडन, तो छोड़ दिया, वो रिचुअल को छोड़ दिया, वो लॉ को छोड़ दिया, वो इंस्टीट्यूशन को छोड़ दिया. दैट मीन्स एब्रोगेट. नाउ वन मोर थिंग, अबॉर्ट. नाउ व्हाट यू मीन बाय अबॉर्ट? अबॉर्ट, आपने वर्ड सुना है अबॉर्शन. ना अबॉर्शन when the process of discontinuing the pregnancy is called abortion. that means जो process चल रहा है उसको रोक देना. तो abort करना to end, abort करना to end, to terminate, to stop. that means किसी भी process को बीच में रोकना, बीच में खत्म कर देना totally, that is abort. और इसलिए इससे मिलता जुलता वर्ड है एबॉर्शन. एबॉर्शन इज जस्ट टर्मिनेटिंग द कंटिन्यूइंग प्रेगनेंसी. किसी भी प्रेगनेंसी को रोकने को हम एबॉर्शन वर्ड यूज करते हैं. दैट मीन्स वो प्रोसेस को बीच में रोक दिया. क्लियर? अब इसके एंटोनिम्स होंगे इंट्रोड्यूस या कंटिन्यू या इंस्टीट्यूट. अब इंस्टीट्यूट, आप उस इंस्टीट्यूट में रह रहे हैं, आप मैरिज में रह रहे हैं, आप मैरिज कंटिन्यू कर रहे हैं, आप उस मैरिज के प्रोसेस को रोक नहीं रहे हैं, दैट मीन्स वो कंटिन्यू हो रहा है. ओके, सी द सेंटेंस. अब अ कंट्री शुड एब्रोगेट आउटडेटेड लॉज. वेरी गुड. तो हमारी कंट्री ने जो पुराने कानून हैं उनको खत्म कर देना चाहिए, टोटली खत्म कर देना चाहिए. क्लियर? दैट मीन्स अब आपको पता है सती प्रथा खत्म हो गई है, बहुत पहले सती प्रथा खत्म हो गई. डाउरी सिस्टम हैज़ बीन एब्रोगेटेड. तो ऐसे ही बहुत सारे जो कानून हैं, बहुत सारे जो कस्टम्स हैं, उनको खत्म कर देना चाहिए. दैट मीन्स एब्रोगेट कर देना चाहिए. क्लियर? चेक आउट द नेक्स्ट. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज एब्सटेन. एब्सटेन करना, विथहोल्ड करके रखना. दैट मीन्स रोक के रखना. एब्सटेन करना, रोक के रखना, आगे नहीं जाने देना, उसको वहीं कंट्रोल कर देना, वहीं स्टक कर देना. ओके, सी दिस प्रोसेस, ये लाइन यहाँ से जा रही है, अगर मैं यहाँ इसको रोक लूँ, दैट मीन्स मैं इसको आगे जाने से रिफ्रेन कर रही हूँ, एब्सटेन कर रही हूँ, उसको कंटिन्यू करने से रोक रही हूँ. दैट इज एब्सटेन. और रिफ्रेन अगेन, उसको वहीं रोक देना, उसको आगे जाने ही नहीं देना, या आगे जा ही नहीं रही, यहीं रुक गई है. तो अवॉइड, सीज. अब ये सीज कहाँ सुना है हमने? सीज हमने सुना है बेटा सीज फायर में. रिमेंबर दैट सीज फायर, द रेड सिलेंडर, जिसको उसमें केमिकल रहता है जिससे हम फायर को कंट्रोल करते हैं. ओके, तो हम फायर को क्या करते हैं? रोकते हैं, इसलिए उसका नाम है सीज फायर. जस्ट अंडरस्टैंड, सीज फायर, आग को रोकना,
आग को रोकने के लिए सीज फायर यूज होता है। तो सीज मतलब रोकना, ओके, सीज लाइन, सीज बाउंड्री, वहीं रोकना, ओके। नाउ सीज कर दो, पूरी चीज सीज कर दो, पूरी प्रॉपर्टी सीज कर दो, दैट मीन्स रोक दो, उस प्रोसेस को रोक दो, उससे आगे नहीं जाने देना, ओके। पूरे ट्रांजैक्शन सीज कर दो, दैट मीन्स जितना भी प्रोसेस हो रहा था उसको वहीं रोक दो। अब इसका एंटोनिम्स होगा डू या कंटिन्यू, मीन्स चालू रखना, क्लियर ना। इट इज वर्थवाइल टू एब्सटेन फ्रॉम इंटॉक्सिकेंट्स, वेरी गुड। इंटॉक्सिकेंट्स मीन्स हार्मफुल केमिकल्स, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें हार्मफुल केमिकल्स के यूसेज को रोक देना चाहिए। नाउ यू ऑल ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स, you all drinks Coca-Cola, Pepsi, these are also intoxicants, these are also harmful chemicals. These drinks contain harmful chemicals which can be harmful to your body, so you must abstain these drinks to save your body. तो abstain करना, रोक देना, done. Now coming to the 8th word, and the 8th word is abstruse. Abstruse मतलब जो समझ नहीं आ रहा, जो confusing है, जो दिमाग से परे है यार, समझ से परे है, समझ ही नहीं आ रहा। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर दैट मीन्स विच इज नॉट ईजिली अंडरस्टूड। बेटा ऑब्सक्योर का भी मीनिंग याद रखना, विच इज नॉट ईजिली अंडरस्टूड, जो बहुत ईजिली समझ में नहीं आए वो है ऑब्सक्योर। तो ऑब्सक्योर जो कंफ्यूजिंग है, जो समझ नहीं आ रहा, सेम एब्स्ट्रूज जो समझ नहीं आ रहा, क्लियर। सिनोनिम्स है परप्लेक्स, अगेन परप्लेक्सिंग का मतलब होता है कंफ्यूजिंग, जो समझ नहीं आ रहा, क्लियर। एसोट्रिक, एसोट्रिक अगेन कंफ्यूजिंग। नाउ अगर मैं परप्लेक्स को एज अ नाउन यूज करूं, एज अ नाउन, तो आई वॉज परप्लेक्स्ड बाय हिज बिहेवियर, तो मैं उसके बिहेवियर को देख के कंफ्यूज हो गई, यार मुझे समझ ही नहीं आया कि वो क्या कर रहे हैं। तो परप्लेक्स होना, परप्लेक्स भी वर्ड एग्जाम में आता ही है, जरूर आता है। परप्लेक्स होना, कंफ्यूज हो जाना, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या है, ओके ना। इसका एंटोनिम क्लियर, जो इजीली समझ में आ रहा है, जो साफ साफ है, ऑब्वियस, जो पता है ऐसा ही है, जो क्लियर है, जो अपैरेंट है, जो दिख रहा है, जो साफ साफ दिख रहा है, ओके। तो यू आर नॉट द ओनली वन हु फाइंड्स आइंस्टाइन्स थ्योरी एब्स्ट्रूज। तो आइंस्टाइन की थ्योरी पता है हमको, साइंटिस्ट आइंस्टाइन, तो आइंस्टाइन की थ्योरी सबको समझ में नहीं आती यार, तो आप अकेले नहीं हो जिसको आइंस्टाइन की थ्योरी समझ नहीं आई, हम भी वही हैं। दैट मीन्स सब लोग में कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको आइंस्टाइन की थ्योरी समझ नहीं आती, तो आप अकेले नहीं हो, आप जैसे बहुत भी हैं जिनको आइंस्टाइन की थ्योरी कंफ्यूजिंग लगती है। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड टिल 8th word, okay. So my students, that's all for today. So I have taught you many words. Just use these words in your day-to-day life and just note down all these words with the synonyms and antonyms, so that this will help you in solving the paper, and I know you can do it, okay. So just take care, have a nice day, thank you.